Thank you so much to Jaipuria Institute for this fantastic opportunity. And when the team first reached out to me, the idea was that I was told that I should talk about the Uclean story and the entrepreneurial journey. But I'll digress a little. So, especially, I was hearing to what Vinod Malhotra sir was saying, और वो constantly बात कर रहे थे fear की, something that in a way shapes a lot of our lives. So my life has also been shaped by fear, fear of failure, fear of a lot of other stuff, fear of losing money overnight. And I think that is one of the reasons behind the journey that I have had so far. So before I start, आप लोगों में से कितनों ने, there is a TVF series called सपने versus everyone. कितनों ने देखा ये? ठीक है. So quite a few. My first suggestion is कि आपको जब भी मौका मिले, you should go and watch this TVF series, सपने versus everyone, which is on Amazon Prime. And वो जो series है, it has nothing to do with entrepreneurship. वो startup से related नहीं है, entrepreneurship से related नहीं है, but it has a very strong message, which you will find very relatable. It is a story about the fear that we face while chasing our dreams in our daily lives. And whatever you are doing, wherever you are right now, you will resonate with this because हम सबके पास एक ड्रीम है, एक सपना है, और उसको चेज करने में, वहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा जो बीच में चैलेंज आता है, that is fear. So before, in fact, I will start off by quoting something from that series, which ranks so true with me. उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक प्ले कर रहा होता है और उसमें वो बोलता है कि उम्र भर ख्याली भूतों से जो मैं ना डरता, उम्र भर ख्याली भूतों से जो मैं ना डरता, ए खुदा मैं क्या जोर से जीता, ए खुदा मैं क्या चैन से मरता. एंड दैट इज सो ट्रू. So I am Arunab. I am the founder of Uclean, which is arguably the largest laundry and dry cleaning chain in the world right now. The reason being that the industry is so extremely unorganized that we have about 700 stores between 190 cities and 8 countries of the world. And possibly we are the biggest, but that doesn't mean that we have a very big market share. ये जो laundry industry है, this is possibly as old as the civilization. दुनिया में किसी को नहीं पता कि पहला कपड़ा कब धुला था, किसने धोया था, क्यों धोया था, किसी को नहीं पता. लेकिन लिटरली दुनिया के किसी भी कोने में, गली में, मोहल्ले में, छोटे से घर में कपड़ा धुल रहा है. So while we, as a brand, I can go ahead and claim that Uclean is the largest laundry chain in the world, but my market share will be less than 1%, because that is how big this industry is, and that is how daunting this industry is. As a background, मैं बिहार से हूँ. बिहार में एक बहुत छोटा सा विलेज है जिसका नाम डिमना है. एंड आई एम वेरी श्योर जो लोग बिहार में रहते हैं उनको भी डिमना के बारे में नहीं पता. तो डिमना अब, क्योंकि बिहार का विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया, सो नाउ यू हैव अ स्टेट कॉल्ड झारखंड. सो डिमना इज नाउ अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड. एंड बिकॉज द स्टील सिटी ऑफ जमशेदपुर, इट हैज़ एक्सपैंडेड, सो डिमना इज नाउ अ पार्ट ऑफ जमशेदपुर. लेकिन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप in the 80s, late 80s, 90s, Dimna used to be a small hamlet which was about 7 kilometers away from the Tata Steel, the steel city of India, Jamshedpur. And जब हम grow up कर रहे थे तो life में जो सबसे बड़ा ambition था, वो था how do you move from Dimna to Jamshedpur. क्योंकि जमशेदपुर में the kids that were staying there, they were generally kids of the employees of Tata Steel. And Tata Steel is a fantastic company, अच्छी salary, बहुत अच्छे perks. Jamshedpur is India's first planned city in that manner. So उस समय Jamshedpur was like the ultimate place to get to. And we were not a part of Tata Steel. My father used to work in a government hospital. And we were literally living paychecks by paychecks. ये 90s का बिहार है जहाँ पर सैलरीज नहीं आती थी, 6 महीने डिले होती थी. तो लाइफ में जो सबसे बड़ा फियर था ग्रोइंग अप वाज द फियर ऑफ मनी. Whether we will be able to pay the fees
the next month or not, because we were 3 brothers and sisters and father was the only working person at home. तो जो सबसे बड़ा fear उस समय रहता था कि fear of money. When will the money suddenly run dry और आप school नहीं जा सकते हो? So that is when the first dream came in. Because I started talking to people and लोगों ने बताया कि इंडिया में अगर अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको IIT चले जाना चाहिए. So IIT dream was not created because मुझे IIT के बारे में पता था. IIT dream was created because I was told that the shortcut to a good life in India, the shortcut to good money is to get into IIT. So worked very hard, got into IIT. अब जब IIT पहुंचे तो the biggest fear was because we were coming from a very small town. ऊपर से हम बिहारी थे, बिहारीज का जो सोशल स्टेटस था या जो परसेप्शन था महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, वो काफ़ी लोली स्टेट का था. तो अब जब IIT पहुँचे तो वहाँ पे एक फियर था कि यार बाकी लोगों से कैसे बात करेंगे, बिकॉज देर आर पीपल फ्रॉम all states of India. A lot of them are people from English-speaking states, especially kids who are coming from Mumbai, Delhi, Bangalore. These were already very fluent in English. They were very confident. And coming from a small town in Bihar, I was clearly not confident at all. So that fear was there. And that fear then pushed me. If I have to survive these 5 years in IIT पहुंचे as a school topper, तो I went in very high. कि I'm a school topper academically, तो बहुत अच्छा कर लेंगे. But when I reached IIT, I realized that every other person is their school topper. So suddenly, life changed overnight. I tried very hard. I did not do well academically. So that fear of not being good at academics, not being good at expressing myself, not being good at social interaction, ये बहुत बड़ा fear बनता रहा. By the time I was in second year, I was very introvert, room में रहता था, interactions limited थे, academically भी कुछ खास नहीं हो रहा था. And then one day I decided to challenge myself. And to challenge myself, I decided that मैं सीधा debate club join कर लूँगा. Because that was the biggest fear. How do you publicly speak when you come from a small village, when you have never interacted with kids from Delhi, Mumbai, Bangalore? So the first fear I just wanted to overcome by straight away doing something that at some point in time I might have thought was impossible. So I joined the debate club. I did not do well, obviously, because the kids from some other schools like the DPS, RK Puram, etc., they were very well spoken. They had a strong pedigree. They had that kind of background. But I didn't give up. So I kept going there. And while I never became the best debater, but it actually helped me overcome that fear. And that actually also sowed the first seeds of entrepreneurship in my life. जब तक एक शेल में थे, तब तक हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा विजन था टाटा स्टील जाना. So that I can take my family from Dimna to Jamshedpur. We can have a very good life in Jamshedpur, work in Tata Steel. But once I started socializing with these kids from the tier 1 cities of India, what I realized was that I was living the frog in a well kind of a life. जो जमशेदपुर के बियॉन्ड या टाटा स्टील के बियॉन्ड जो दुनिया थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी. वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर रहे थे. एंड दैट हैड अ पॉजिटिव रब ऑफ ऑन मी. जब जॉब का टाइम आया, प्लेसमेंट का टाइम आया, तो आई हैड दैट फियर अगेन, द फियर ऑफ, क्योंकि IIT आने का सिंगल मकसद ही यही था कि जॉब करनी है, अच्छे पैसे कमाने हैं, टाटा स्टील में जाना है. Now, I had moved on from Tata Steel. I took up a job which was anyway paying very well compared to a Tata Steel kind of a job. And I joined there. Initially, the job was exciting. 5-star resort mein training karai. Jo, for someone like me who had never been to even a 4-star hotel, suddenly being transported to a 5-star hotel, for 30 days, din bhar activities, events वगैरह होते थे. So I suddenly thought that I have reached where I wanted to be. First couple of months, the job was good, and then it started getting repetitive. This was a consulting company, an American consulting company, and I had gone there thinking that there would be a lot of client exposure, air travel hoga, hotel stays hoga. But what I realized was that we were the back end for that consulting company, जहाँ पे mainly American clients थे और जो American team थी, they were doing all the front ending. So eventually it started getting very boring. And I was literally fed up by the time I was in the 11th month. I did not want to go to the office
खुद को ड्रैग करके ऑफिस जाना पड़ता था, विदाउट एनी सोल, विदाउट एनी इंटरेस्ट आई यूज्ड टू डू द जॉब. बट आई वॉज अफ्रेड कि अगर ये जॉब से मुझे निकाल दिया गया या मैंने जॉब छोड़ दी तो वेयर विल द नेक्स्ट पे चेक कम फ्रॉम. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम द बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ वॉज द पे चेक. हाउ कैन यू स्टॉप द पे चेक फ्रॉम हिटिंग इन टू योर बैंक अकाउंट, बिकॉज आई हैड गॉटन इन टू दैट कम्फर्ट लेवल. हर महीने आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि 1 तारीख को आपके यहाँ सैलरी आ जाएगी and you will live a life, you will send some money home, you will spend some money on partying, you will spend some money on outings. So everything was happening, but I was not at all enjoying it. So one fine day, I decided to just call it quits. मैंने resign कर दिया with no other plan in mind, except the fact that I wrote the common admission test, the CAT. It happened, I got an invite. I could not take up that admission at IIM because of my sister was getting married, तो हम 2 जगह पैसे नहीं लगा सकते थे. So now I got frustrated because it had happened and then it did not happen. So near yet so far. तो उसके बाद मैंने सीनियर से बात करना शुरू किया. So some of them told me कि यार IIT के ऊपर IIM की डिग्री वैल्यू ऐड नहीं करती है, आपको Ivy League के कॉलेजेस, अमेरिकन कॉलेजेस के अप्लाई करना चाहिए. So I got curious. They told me that I should have a very strong social angle story. I should work with people at the bottom of the pyramid. So I joined this not-for-profit consulting firm called TechnoServe. TechnoServe used to work with farmers at the bottom of the pyramid, and they used to connect जो farmers होते हैं बिल्कुल bottom of the pyramid में होते हैं, जो producers होते हैं, उनके बीच में आपको पता है कि एक आड़तिया होता है और आड़तिया के बाद एक buyer होता है. तो TechnoServe basically आड़तिया को हटाकर प्रोड्यूसर और बायर को डायरेक्ट कनेक्ट करती थी. नाउ बिकॉज इट वॉज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसल्टिंग फर्म, सो सैलरी वॉज 50% ऑफ वॉट आई वॉज गेटिंग एट माई फर्स्ट कंपनी, बट द वर्क वॉज एक्साइटिंग. बैंक बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, लेकिन उस समय जो लास्ट प्रोजेक्ट मिला था, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वेयर देर वॉज द स्टार्टअप दैट वॉन्टेड टू ब्रिंग कोकोनट वाटर फ्रॉम इंडिया टू US, पैकेज इट एंड सेल इट अक्रॉस. उस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला. इट वाज एंड आई वाज डायरेक्टली वर्किंग विद द फाउंडर्स. दैट कंपनी इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ वाइटा कोको, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैकेज्ड कोकोनट वाटर कंपनी टुडे, विच इज लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड द जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज. बट उस समय ये स्टार्टअप था. सो आई गॉट लकी, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द फाउंडर्स, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इंडिया का फियर बहुत बड़ा फियर है. ये जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन ब्रांड्स, सबको इंडियन मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है, बिकॉज ऑब्वियसली हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं. लेकिन क्योंकि इंडिया में स्कीम्स बहुत होते हैं, स्कैंडल्स बहुत होते हैं, तो ये ब्रांड्स डरते बहुत थे कि यार मार्केट तो सही है, बट कोई हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, हमारे पैसे ना फंस जाए. तो आई थॉट दैट देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गैप. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि लेट मी क्रिएट अ कंपनी that is based on this fear. So the fear of India, but at the same time, the opportunity that India has. So I started my first startup in 2011. I left that job, I left all the Harvard, Stanford dreams, and I started my first startup जहाँ पर हम international brands को India enter करने में help करते थे. अब company बना ली, अब समझ में नहीं आ रहा था कि project कहाँ से मिलेगा, because no one knew us. अब उस समय कोइंसिडेंटली एक हार्ली डेविडसन अपनी असेंबली प्लांट लगाना चाहती थी इंडिया में, एंड वन ऑफ माय सुपर सीनियर्स, एक IIT बॉम्बे का बंदा जिसको मैं नहीं जानता था बिल्कुल भी, जिनके साथ कोई भी ओवरलैप नहीं था, ही वॉज हेडिंग द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर हार्ली डेविडसन. अब मुझे ये पता चल गया, उसकी ईमेल आईडी मिल गई, उसका फ़ोन नंबर मिल गया, बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, डर लग रहा था कि यार मैं कॉल करूँगा, इन्होंने मुझे कॉल पर ही सुना दिया या मेरे मेल का रिप्लाई नहीं किया. तो नाउ आई हैड दिस फेक ईगो दैट वाज स्टार्टिंग टू कम इन, अ फेक फियर. आई वाज नथिंग, ना मेरी कंपनी कुछ थी, ना मैं कुछ था, बट आई हैड दिस फियर दैट what if he says no, what if he scolds me, what if he puts it on the public platform, what if he makes a story out of it. तो 2-3 दिन तो मैं यही सोचता रहा. फिर एक दिन हिम्मत आई, मैंने उनको कॉल कर लिया. He actually picked up the call, he heard me out and he said कि मैं आपको प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, you have to work as per my plans. And we got Harley Davidson on board. Thereafter we helped Harley Davidson under his guidance. But
That fear actually allowed Harley Davidson to come on the platform of my first startup, which is a company by the name of Frank Global. And एक बार Harley Davidson आपके प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो पूरा अमेरिका आपके लिए ओपन हो गया. उसके बाद we worked with companies like Burger King, Carl's Jr. Burgers, and everything. But if I had not taken that step, अगर मैं उस समय डर जाता तो most probably the startup would have not been created. We built it, and in 2015, I sold that startup to Times of India and Franchise India, and we got a very good exit. After that, I ran a budget hotel chain called Tribo Hotels, which is today the second largest hotel chain after Oyo, अगर आप budget hotel space में देखोगे. And I ran it for about 15-16 months as the CEO for North India. While running this business, I realized कि इंडिया में जो 2-star and 3-star budget hotels हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज, ऑलमोस्ट 60% कंप्लेंट्स आते हैं लॉन्ड्री रिलेटेड. कस्टमर आया पहाड़गंज के एक होटल में, उसको दिखा उसकी बेडशीट गंदी है, टॉवल्स गंदे हैं, कर्टन्स गंदे हैं. एंड एज वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग वी रियलाइज दैट दिस इज अ नेशन वाइड फिनोमिनन. इंडिया के किसी भी बजट होटल में, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, आप कहीं भी चले जाओ, आपको रियलाइज होगा कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो लॉन्ड्री रिलेटेड आता है. सो अब मैं ट्रीबो में आई वॉज देयर हाइएस्ट पेड एम्प्लॉय. मैं उनका CEO था, तो मार्केट में एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन थी. मोर इम्पॉर्टेंटली मेरी जस्ट शादी हुई थी, उसमें पूरे पैसे लगा दिए थे. जापान चले गए थे एक्सक्विजिट हनीमून मनाने के लिए, उसमें पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया. अब उस सिनारियो में ये सब छोड़कर अपना स्टार्ट करना वॉज अ वेरी फियरफुल थिंग टू डू. और क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मेरे पेरेंट्स, बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट बिहार में वी आर अ वेरी IAS ऑब्सेस्ड स्टेट. हमारे यहाँ मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि आई शुड बिकम एन IAS ऑफिसर. आई वॉज नॉट एज हार्ड वर्किंग एज सर, सो आई डिसाइडेड नॉट टू डू इट. लेकिन वी आर अ वेरी सिविल सर्वेंट्स ऑब्सेस्ड स्टेट. मतलब वहाँ पे हर पेरेंट्स का एक ही ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा पहले IIT चला जाएगा, IIT के बाद IAS बन जाएगा. हम IPS तक भी नहीं जाते हैं. दैट्स हाउ ऑब्सेस्ड वी आर. लेकिन वो सपना मैंने पूरा नहीं किया. ऑन टॉप ऑफ दैट आई वॉज ट्राइंग टू डू लीव अ जॉब दैट वॉज पेइंग मी वेरी वेरी हैंडसमली. सोसाइटी में बहुत इज्जत थी, रिलेटिव्स बहुत खुश थे, बहुत प्राउडली बताते थे कि ट्रीबो होटल्स का CEO है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये सब छोड़ के धोबी बनने का सपना. तो दिस वॉज शॉकिंग, स्कैंडलस एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स. मतलब ये डिस्कशन ही मैं नहीं कर पा रहा था अपने पेरेंट्स से. वेरी स्मॉल डिस्कशन इटसेल्फ बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन आया था. बट सो दैट फियर कि आप सडनली लिटरली आप ज़ीरो पे आ जाओगे, आप धोबी बन जाओगे, हाउ विल यू अडेप्ट टू दैट न्यू लाइफ स्टाइल. बट आई थिंक वॉट हैज़ ऑलवेज वर्कड इन माई फेवर इज दैट आई एम वेरी स्टबर्न, स्टूपिडली स्टबर्न. बहुत बार ये गलत भी वर्कआउट करता है. सो इट्स नॉट द जिद्दी होना बेस्ट थिंग नहीं है, बट समहाउ आई थिंक इट्स वायर्ड इनसाइड मी. सो आई एम वेरी वेरी स्टबर्न. तो सबके मना करने पर भी आई कन्विंस माई वाइफ कि तुम तो जॉब कर ही रही हो, तुम घर चला लेना. एंड तुम सो माई वाइफ स्टार्टेड मून लाइटिंग व्हेन मून लाइटिंग वॉज नॉट इवन अ वर्ड. सो माई वाइफ यूज टू हेड HCL की एक डिवीजन है कंटेंट की, उसका डिजिटल मार्केटिंग हेड करती थी. शी इज़ वेरी गुड एट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. So we decided that she will continue to run the family. She will continue to be the sole bread earner for the family. And इसके अलावा वो नाइट टाइम में यूक्लीन का भी काम करेगी. So I had a free marketing officer who was moonlighting when the term moonlighting did not even exist. मैंने अपनी जॉब छोड़ी. मैंने जो भी सजेशंस एडवाइस मिले थे सबको इग्नोर करके हमने यूक्लीन की शुरुआत करी. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द फर्स्ट स्टोर. अब जो पहला स्टोर था वो हमने मुश्किल से, सो ऑब्वियसली देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ मनी दैट वाज लेफ्ट. समहाउ वी सेट अप द फर्स्ट स्टोर ऑफ आवर ओन. एंड उसके बाद मैंने क्या किया, समथिंग दैट इज़ वेरी पॉपुलर विथ यू जेन ज़ी पीपल, इसकी मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब से पढ़ के पूरा लॉन्ड्री बिजनेस समझ लूँगा. तो मैंने डिसाइड किया मैं किसी को हायर नहीं करूँगा. ओवर कॉन्फिडेंस, उस समय मुझे लगा था कॉन्फिडेंस है, बट ओवर कॉन्फिडेंस था. And I watched a lot of YouTube tutorials, manuals वगैरह पढ़ लिए, how to start a laundry business, how to become a millionaire laundry वाला, ये जितने YouTube वीडियोस थे जितने अवेलेबल थे सब पढ़ लिए मैंने.
और साथ में एक बंदा हायर कर लिया, सारे मैनुअल्स पढ़ लिए और साथ में ओवर कॉन्फिडेंस था ही। अब हमने स्टार्ट किया अपना बिजनेस और सो 17th January 2017 को वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट स्टोर इन वसंत कुंज एरिया ऑफ दिल्ली। 8 फरवरी को तो हम क्या करते थे, शुरुआत में मैं ही करता था वॉशिंग एंड क्लीनिंग और वो आयरन मैन आयरनिंग करता था। तो उस दिन हमें एक वसंत कुंज में एक स्पा खुला था, वहाँ से हमें टॉवल्स का ऑर्डर आया। तो हमारे स्टोर में चूहों का प्रॉब्लम था, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि घर जाने के पहले सारे कपड़ों को हम वॉशर्स एंड ड्रायर्स में डाल के बंद कर देते थे सो दैट रैट बाइट ना करें। उस दिन करीब 8-9 बजे वो सारा लोड रात में मैं लेकर आया स्पा से, एंड बिकॉज वी वर टायर्ड सो वी डिसाइडेड कि ये सारा टॉवल्स हम ड्रायर में डाल के चले जाते हैं और कल आकर क्लीन कर लेंगे। नाउ द प्रॉब्लम वॉज दैट आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू क्लीन स्पा टॉवल्स। अब स्पा में क्या होता है, जो टॉवल्स यूज़ होते हैं उसमें एरोमेटिक ऑयल्स यूज़ होता है। एरोमेटिक ऑयल्स आर एक्सट्रीमली इन्फ्लामेबल। तो भी अब पता था नहीं, उठा के डाल दिया ड्रायर के अंदर। ड्रायर हमने जस्ट उस समय बंद किया था। अब आप देखोगे जो आपके घर पे भी जब आप ड्राइंग एक्शन करते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट होती है, दैट इज़ हाउ इट्स एबल टू ड्राई योर क्लोथ्स। तो अभी उस ड्रायर के अंदर हीट ट्रैप्ड था, लेकिन ये अकल थी नहीं, तो उसके अंदर डाल के ड्रायर के अंदर बंद करके चले गए। रात में करीब 1 बजे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ डोमिनोज पिज्ज़ा स्टोर राइट नेक्स्ट टू आवर स्टोर कि सर आपका स्टोर जल गया। सो आई रैन देयर। जब तक मैं पहुंचा तब तक द एंटायर स्टोर वॉज गटेड टू एशेस। ना मशीन्स बची थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा था, ना लैपटॉप बचा था, ना कुछ बचा था। सो अबाउट 16 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने बड़े सपने दिखाकर कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली से निकलवाए थे, वो सारा कुछ जीरो हो चुका था। नाउ आई वॉज शॉक्ड, अब करें तो क्या करें। तो आई डिडंट स्लीप, ऑब्वियसली नो वन विल स्लीप। उसके बाद अगले दिन मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। सो वन ऑप्शन वॉज टू से दैट टुडे वॉज द लास्ट डे ऑफ यू क्लीन एंड देन फिगर आउट अ वे कि इन लोगों को 16 लाख कैसे लौटाने हैं। सेकेंड वॉज आई हैड नो आइडिया, बट आई डिड नॉट लाइक द फर्स्ट एंडिंग। सो मैंने डिसाइड किया कि वो जो इक्विपमेंट कंपनी है, लॉन्ड्री मशीन की कंपनी, इट्स अ $3 billion अमेरिकन कंपनी, मैंने सोचा कि उसके सीईओ को लिंक्डइन पे स्टॉक करूंगा। तो मैंने उसके सीईओ को लिंक्डइन पे गया और मैंने उसको एक मैसेज लिखा बहुत लंबा सा कि मैं यू क्लीन को ये बनाने वाला था, आपकी 1000 मशीन बिक जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन मेरा स्टोर जल गया। एंड आई जस्ट रोट दिस एंड आई स्लेप्ट ऑफ नेक्स्ट नाइट। एक्चुअली दैट गाय रिस्पॉन्डेड। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार ये नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, बोलेगा ये पागल लड़का है, ऊपर से मेरा स्क्रीनशॉट लेके बेइज्जती कराएगा। बट आई स्टिल थॉट कि यार एनीवे आई एम एट जीरो, सो इस नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। दैट गाय एक्चुअली रिस्पॉन्डेड सेइंग दैट लेट्स कनेक्ट ओवर स्काइप। वो स्काइप का ज़माना था, यू मस्ट हैव रियलाइज दैट स्काइप बंद हो गया 3 दिन पहले, बट उन्होंने स्काइप पे कनेक्ट किया एंड ही सेड दैट वाइल वी आर द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ अ चैलेंज फॉर अस एंड दैट इज़ वाई वी वॉन्ट एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू टू क्रिएट अ लॉन्ड्री रेवोल्यूशन इन इंडिया, जिससे कि इंडिया में भी लोगों को लॉन्ड्रोमैट्स के बारे में पता चलेगा और हमारी मशीन्स बिक जाएंगी। सो ही सेड दैट मैं आपका स्टोर वापस से पूरा लगा के दूंगा, यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग, कंसिडर इट एज अ gesture of goodwill from my side. And he actually set up the store and Uclean store restarted. So while we always say that our foundation day is January 17, लेकिन हम actually 28 March को Uclean की वापस से वसंत कुंज में शुरुआत हुई. And then of course at various points in time we have been confronted with fear. जैसे recently जब हमने इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू किया तो हमें वेरी सरप्राइजिंगली सबसे पहली इंक्वायरी सोमालिया से आई. अब सोमालिया की हिस्ट्री, सोमालिया का रेपुटेशन तो पूरी दुनिया को पता है. अब वो बंदा बोल रहा था मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ. अब मुझे लग रहा था ये कहीं कुछ लेके आएगा फ्लाइट में, कुछ ला रहा हो, ड्रग्स ला रहा हो, क्या ला रहा हो. तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं मिलना चाहिए. और मेरी टीम, मेरा जो लीगल एडवाइज़र है उसने सीधे मना कर दिया, बॉस यू विल नॉट हैव एनी मीटिंग विथ एनीवन फ्रॉम सोमालिया. एंड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, इंडिया का एम्बेसी नहीं है सोमालिया में. सोमालिया डजेंट हैव एन इंडियन एम्बेसी, तो आपको इथियोपिया जाना पड़ता है टू टेक अ वीज़ा. वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया, वो भी कम जिद्दी नहीं है. और मेरे अंदर भी है थोड़ी सी वो कि खुजली थी मुझे भी कि नहीं नहीं मिलना तो है. तो मैंने बताया नहीं लोगों को, मैंने उसको बोला तुम आ जाओ.
तो ही वेंट इथियोपिया, वो पहुंचा, वहाँ पर उसको बोला गया कि किस लिए जाना है, तो उसने बोला मुझे यूक्लीन नाम का ब्रांड है, उसको सोमालिया लेके आना है। तो वहाँ पर उन्होंने उसको भगा दिया कि सोमालिया के साथ इंडिया कोई बिजनेस नहीं करता है, हम सिर्फ मेडिकल वीज़ा देते हैं। तो उसने मुझे रीच आउट किया कि मुझे वीज़ा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मेडिकल वीज़ा देते हैं। फिर वी डिड समथिंग विच आई विल नॉट डिस्क्लोज, बट वो 3 दिन बाद ही वॉज देयर इन इंडिया एंड बाय दैट टाइम नोबडी इन माई टीम न्यू, ही वॉज देयर टू टेक द ट्रेनिंग। हम मिले, उसके बाद मैंने पहले उससे पैसे ट्रांसफ़र करवाए एंड आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि आपकी कंट्री का रेपुटेशन बहुत ख़राब है, तो मुझे पहले प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, आप पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, उसके बाद आई विल इमीडिएटली स्टार्ट योर training process. So today we are on May 25th we are launching Uclean in Somalia. A fantastic guy, very young guy, 24 years of age, has studied in London and genuinely very, very focused on becoming an entrepreneur. So that fear would have, and I don't know future mein kya hoga, but I'm confident that the kind of person that he is and the fact that we have spent 8 years of blood, sweat and so much resources in building Uclean, I'm very, very confident that this guy will create or build a laundry wave in Somalia, and इसका जो repercussion होगा, जो positive vibes create होंगे, उससे we'll be able to expand. We have already signed up Ghana because of him. So there was a customer from Ghana who was visiting us, and when he knew that we have entered in Somalia, उसने उससे बात करी, he signed up Ghana, we have signed up Mauritius. So अभी हमारा सोमालिया में एंट्री नहीं हुआ है, but we are already present in multiple countries in Africa, and that is only because of the story of Osman, who is our master franchise partner in Somalia. So I feel that at various points in time, fear versus dreams is the biggest equation that all of us are grappling with. Whether you are an entrepreneur, whether you are leading a daily life, whether you are working professionally somewhere, there is always going to be fear that is going to stop you from achieving your dreams. And sometimes I'm not going to say that everybody has to be as stubborn as me or as stupid as me, because मेरे लिए fear एक ड्राइवर है, जहाँ पे मुझे लगता है fear में वो काम ज़रूर करता हूँ। और मैंने आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, मैं आपको फेलियर्स नहीं बताऊंगा, बट मैंने बहुत सारे कांड भी किए हैं, बिकॉज देयर वॉज अ फियर दैट वॉज स्टॉपिंग मी, तो मैंने ज़बरदस्ती करा एंड आई रियलाइज दैट आई शुड हैव नॉट डन इन हाइंडसाइट. बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट you need to have 3 things. One, fearlessness in life is very, very important. Whether you are an entrepreneur or so, मैं जॉब इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं कि मैं entrepreneur में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, मेरा बिजनेस बड़ा होगा कि नहीं, 6 महीने में पैसे आएंगे कि नहीं. That is the biggest fear stopping a lot of people from becoming entrepreneurs and taking up jobs. I'm not saying that jobs are not good. Jobs, you learn a lot at jobs. अगर हर बंदा entrepreneur बन जाएगा तो Uclean कैसे चलेगी? So obviously, it's good to do jobs, but don't let job become a hindrance from becoming an entrepreneur. ये अब आप लोग बहुत young हो, अभी आप लोगों के पास time है, opportunity है. This is the best time to become an entrepreneur. India is rising. Somebody already talked about India becoming the 4th largest country in the world. आप international travel करो, you will see that there is so much positivity. We have just launched a store in Abu Dhabi and Dubai, and we have realized that the entrepreneurs in those regions actually look up to Indians because of the success stories that people like Binny Bansal, Vijay Shekhar Sharma have created. India का image बहुत solid है internationally भी. So there cannot be a better time to become an entrepreneur, but be fearless, have immense, almost stupid conviction in your abilities. Literally, मतलब कोई आपको कुछ भी बोले, have a ridiculously strong conviction in yourself. This is your story. You are the hero of your story. So very, very strongly believe in this. मैं आपको genuinely बता रहा हूँ कि अगर आप ये believe कर लोगे कि आप कर सकते हो, and what the world is saying doesn't matter, you will be able to achieve it. So I'll leave you with this thought. For Uclean, I will say that अभी तो हमने just start करी है जर्नी. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे यादों का इम्तहान अभी बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है. Thank you so much.